Hello, my dear students. I Rahul Mishra, and today we will start the new chapter of your syllabus, and this is chapter number 4, and it is chemistry in everyday life. Chemistry in everyday life. Now, in this chapter, we will study the usage of chemistry in our daily life. The usage of chemistry in our daily life. Since we all know that the chemistry is very useful for our daily life, it is used in medicine, in agriculture, it is also used in making plastic materials as polymers. We have earlier discussed in making medicines like paracetamol, Disprin, in making some agriculture agents, we can say DDT, it is insecticide, in making other pesticides, Gamexine. So chemistry, it is very useful for our daily life. It means chemistry का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है. So listen, in this chapter we will discuss their uses. So first we can say, first we will discuss the use of chemistry in medicine. So listen, chemical compound means रासायनिक पदार्थ. Chemical compounds are widely used in our daily life. They are used in many fields like medicinal, agriculture, cosmetics, in utensils like plastic materials, like ropes, like cup plates. So chemistry is widely used in our daily life. It means chemistry का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है. So listen, this chapter is very interesting. So first we will discuss the use of chemistry in medicinal field, या हम ये कह सकते हैं the use of chemistry as a drug or medicine. Use of chemical compound as a drug or medicines. So what is drug? So drug are chemical compound of low molecular mass. These enter with a macromolecular target and produce a biological response. इसका मतलब ड्रग ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी बॉडी में उस टारगेट पर जाते हैं जहां हमें प्रॉब्लम होती है, और वो कुछ ना कुछ उसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं या उसका उपचार करते हैं. सो दैट केमिकल कंपाउंड आर कॉल्ड एज ड्रग. तो ड्रग बॉडी की उस साइट पे जाएगा जहाँ पर हमें प्रॉब्लम होगी, और उस साइट को कहते हैं रिसेप्टर. क्या कहते हैं? रिसेप्टर. सो ड्रग ऑलवेज बाइंड टू द रिसेप्टर साइट.
ड्रग हमेशा बॉडी में रिसेप्टर साइट पे जाता है या टारगेट पे जाता है और फिर हमारी प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। सो ड्रग इज अ केमिकल कंपाउंड which interact with macromolecular target which is called as receptor and produce a biological response. So when the biological response is therapeutic and useful, therapeutic means ये अगर हमारा जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो उपचार करने योग्य है या यूजफुल है, देन दीज केमिकल्स आर सेड टू बी मेडिसिन। इट मीन्स अगर हमारा जो केमिकल कंपाउंड है उससे कोई हमें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिल रहा है तो जो केमिकल या केमिकल कंपाउंड है उसे मेडिसिन बोला जाता है। सो इट इज़ यूज्ड इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज। तो मेडिसिन का यूज हमें पता है, मेडिसिन का यूज डिसीज को रोकने या उसके उपचार करने के लिए किया जाता है। सो दिस इज द वेरी बिग यूज ऑफ केमिस्ट्री इन मेडिसिन। नाउ second thing we will discuss, second topic, chemotherapy. So use of chemical for therapeutic effect is called as chemotherapy. It means किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए केमिकल का यूज करना ही या थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट पाने के लिए केमिकल का यूज करना ही क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ, वी कैन से इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द यूज ऑफ ड्रग एज मेडिसिन टू क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ मेनी डिसीज इज कॉल्ड एज कीमोथेरेपी। इट मीन्स कीमोथेरेपी क्या है? ये एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें किसी भी केमिकल कंपाउंड को यूज किया जाता है किसी बीमारी के उपचार के लिए या उसे रोकने के लिए। एंड द सब्सटेंस यूज्ड एज मेडिसिन इज कॉल्ड एज कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। और जो सब्सटेंस है जिसे उपचार करने के लिए यूज किया जा रहा है या जो केमिकल कंपाउंड है, दैट केमिकल कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। नाउ we will discuss drug target. So as we have earlier discussed, now we will again discuss it. Drug generally mutually react with large molecule present in human body. अभी हमने आपको बताया जो ड्रग होती है वो हमारे बॉडी में एक मॉलिक्यूल पर रिएक्ट करती है या एक मॉलिक्यूल पर जाके अपना एक्शन दिखाती है, एंड दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ड्रग टारगेट, या इसी को हमने बताया रिसेप्टर भी कहते हैं, ड्रग टारगेट। दीज लार्ज मॉलिक्यूल यूज्ड एज ड्रग टारगेट। यही जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं इन्हें ही ड्रग टारगेट कहा जाता है या इन्हें ही रिसेप्टर साइट्स भी कहा जाता है। रिसेप्टर साइट जहाँ पर हमारी ड्रग आके बाइंड होती है। नाउ दीज बायोमॉलिक्यूल में बी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट। ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं या जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं हमारी बॉडी के अंदर जहाँ हमारी ड्रग आकर बाइंड होती है वो हमारा प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं।